Welcome to the BioWin Academy. Today we are going to learn a topic, megasporogenesis. What is megasporogenesis? It's simply the formation of megaspore from the diploid megaspore mother cell. यानी जो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल है उसी से ही हैप्लॉइड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होना, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरजेनेसिस, मेगास्पोर्स का क्या है, जनरेट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है. मेगास्पोर मदर सेल कहां पर प्रेजेंट है? तो ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है और ओव्यूल का जो हमने स्ट्रक्चर स्टडी किए हैं उसमें जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूसेलस. ये जो न्यूसेलस है इसी के कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं और उससे मेगास्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होता है. मींस सम न्यूसेलर सेल्स दे अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड मेगास्पोर मदर सेल्स आर produced. And from this megaspore mother cell, the haploid megaspores are produced. Means megaspore mother cell undergoes meiosis, and after meiosis, this cell division process, the 4 haploid megaspores are produced. So that is why megaspore mother cell becomes distinguished in the nucellus, more or less in the center, but towards the micropylar end of the ovule. Means while discussing the structure of ovule or anatrophous structure of the ovule, we have seen the micropylar end and callosal end. So what happens in this case, whichever cells are produced, whichever megaspore mother cells are produced and then they undergo the meiosis, so you will find that this differentiation and also formation of the megaspore takes place towards the micropylar end. यानी ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर एंड है, एक है शलाजल एंड जो बेजल एंड भी है ओव्यूल का, एनाट्रोफस ओव्यूल का, और दूसरा है माइक्रोपाइलर एंड. ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड की साइड के जो मेगास्पोर मदर सेल है उसका मियोसिस होता है और 4 haploid megaspores are produced. This is megaspore mother cell. ये जो megaspore mother cell है डिप्लॉइड है और ये न्यूसेलस सेल से बनी हुई है, न्यूसेलस टिश्यू का ही डिफरेंशिएशन हुआ है, उस सेल का डिफरेंशिएशन हुआ है और उन्हीं से मेगास्पोर मदर सेल प्रोड्यूस हुई है. ये डिप्लॉइड है. इसका होता है मियोसिस, एंड यू ऑलरेडी नो दैट इन द मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर बिकम reduced. So that is why meiosis is called as reduction division. So as this megaspore mother cell is diploid and after meiosis 4 haploid megaspores are produced, and all these 4 megaspores are haploid in nature. This must be kept in the mind that all these 4 haploid megaspores are haploid in their genetic makeup. Now, ये जो meiosis process है, the formation of 4 haploid megaspores by the process of meiosis from the megaspore mother cell is called as megasporogenesis. This process is called as megasporogenesis. So out of these 4 megaspores, what happens? These 3 megaspores undergo degeneration, means destruction. ये जो 4 megaspores है इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और डिस्ट्रक्शन होके जस्ट 1 मेगास्पोर प्रेजेंट रहता है, जिंदा रहता है. सो दिस 3 megaspores which are towards the callosal end, they undergo degeneration and only 1 megaspore will remain functional. So this is what megaspore
which is functional here. Or this megaspore is haploid, and this haploid megaspore will undergo 3 successive mitotic division, यानी इसी का ही 3 बार माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने के बाद में, सक्सेसिव माइटोसिस होने के बाद जो एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड एज फीमेल गमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक. उसी स्ट्रक्चर को बोलेंगे फीमेल गमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक. सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, दिस मेगास्पोर और एम्ब्रियो सैक, मेगास्पोर को क्या बोला है, एम्ब्रियो सैक, इट अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन. सबसे पहले, उससे भी पहले क्या होता है, ग्रोथ नरिश्ड बाय न्यूसेलस, यानी इस मेगास्पोर का ग्रोथ होता है, इसका नरिशमेंट होता है, इसको सारे न्यूट्रिएंट्स न्यूसेलस के सेल्स प्रोवाइड करते हैं, so that this should grow sufficiently. After growth, what will happen? There will be the first mitosis. In the first mitosis, there will be free nuclear division. ये तीनों के समय, तीनों बार जो माइटोसिस होता है, उस समय न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न कि सेल का डिवीजन होगा. ये एक सेल ही है, मेगास्पोर क्या है, सिंगल सेल है, हैप्लॉइड सिंगल सेल है. इसका जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड है. हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसमें. तो इसका माइटोसिस होगा, यानी जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस न्यूक्लियस में होंगे, उतना उसका माइटोसिस होने के बाद में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के 2 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे. सो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड. उसके बाद ये प्रोसेस कहां हो रही है, दिस इज टेकिंग प्लेस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, इसलिए लिखा है एंड नियरेस्ट माइक्रोपाइल, यानी ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर एंड है, तो ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर एंड है उसके ऊपर वाला जो न्यूसेलस है, वो न्यूसेलस में जो मेगास्पोर है, उस मेगास्पोर का नरिशमेंट होगा, उसका ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होने के बाद जो उसका माइटोसिस हो रहा है, दैट इज टेकिंग प्लेस end nearest micropyle, at the end nearest micropyle. So after the first mitosis, there will be formation of 2 nuclei, both the nuclei are haploid. Then what will happen, these 2 nuclei will undergo second mitosis, and after second mitosis there will be formation of 4 nuclei. So then there will be third mitosis, all these 4 nuclei will undergo mitotic process, and after mitosis there will be formation of 8 nuclei. After formation of 8 nuclei, out of the 4 nuclei, 2 nuclei will come towards the center and 3 nuclei will be shifted towards the callizal end. These are called as antipodal cells. मीन्स सेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टरवर्ड्स, यानी पहले न्यूक्लियाई जो है वो रीअरेंज हो जाते हैं. जब 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, आउट ऑफ दिस 8 न्यूक्लियाई, ये अभी तो 4 दिख रहे हैं, बट इनका थर्ड माइटोसिस होने के बाद में टोटल 8 न्यूक्लियाई हो जाते हैं. वो जो 8 न्यूक्लियाई है उसमें से 2 न्यूक्लियाई सेंटर की ओर आते हैं, एंड दोज 2 न्यूक्लियाई आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई. 3 न्यूक्लियाई जो है दे विल गो टुवर्ड्स द callizal end and they are converted into antipodal cells. ये 3 न्यूक्लियाई callizal end की ओर चले गए, फिर उसके बाद में उनका कन्वर्शन सेल्स में हो गया और 3 एंटीपोडल सेल्स बने. अगेन the 3 nuclei will be shifted towards the micropylar end. Out of these 3 nuclei, 1 nuclei will become egg cell and 2 nuclei will become synergid cells. यानी जो एक न्यूक्लियाई है, ये वाला सेंटर वाला न्यूक्लियाई, वो एग सेल बनेगा जिसे फीमेल गमीट कहते हैं, और ये जो दोनों के दोनों न्यूक्लियाई है उनका कन्वर्शन 2 सेल्स में होगा. All these 2 cells will be called as synergid cells. These synergid cells are supporting cells and they are having a very peculiar structure in their cell wall which is called as filiform apparatus. इनमें filiform apparatus होता है which is actually the projection of cell wall, and they are very much required for
the passage of the pollen tube during the fertilization. So if afterwards what happens, ये दोनों के दोनों जो न्यूक्लियाई है ये फ्यूज हो जाते हैं और एक ही न्यूक्लियस बनता है एंड दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस. लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखते हो, what do you see? There are 3 cells here. There are 3 cells here. ये 3 और 3 6 सेल्स हो गए एंड 3 और 3 6 सेल्स जो है 6 सेल्स हो गए, मतलब 6 न्यूक्लियाई, और सेंटर में ये 2 न्यूक्लियाई है. तो ये टोटल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो गया. ये 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर शब्दों में कहा जाए तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है. अगर हम देखते हैं तो ये 3 सेल्स हो गए, ये 3 सेल्स, दिस 3 and 3 6 सेल्स, एंड दिस कंप्लीट वन इज अ सिंगल सेल. मतलब ये टोटल 7 सेल्स हो गए और उसका ये न्यूक्लियाई हो गया इस सेल का. तो टोटल 8 न्यूक्लियाई हो गए, 3 and 2 and 3 8 न्यूक्लियाई and 3 and 3 6 cells, and this is what complete one cell, 7 cells. Means this structure is 7-celled 8 nucleated structure and this is called as female gametophyte. इसको फीमेल गमेटोफाइट कहते हैं. उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल डिप्लॉइड, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है, दोनों फ्यूज होने की वजह से डिप्लॉइड सिंगल न्यूक्लियस तैयार हो रहा है, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं. ये सेकेंडरी न्यूक्लियस तैयार हुआ तो ये स्ट्रक्चर लो या ये स्ट्रक्चर लो, ये स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के समय तैयार होता है, इसे भी कहा गया है फीमेल गमेटोफाइट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गमेटोफाइट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गमेटोफाइट. सो मैच्योर एम्ब्रियो सैक फीमेल गमेटोफाइट, just before fertilization, 7 nuclei present, 6 are haploid, 1 is diploid. All these 6 nuclei are haploid or 6 cells are haploid, and the central nucleus is diploid, which is called as secondary nucleus. So once again, this is what megaspore mother cell. Meiosis takes place. From this megaspore mother cells, 4 megaspores are formed, which are haploid megaspores. This is secondary. This megaspore mother cell is diploid and megaspores are haploid. Out of 4 megaspores, upper 3 megaspores undergo degenerations and 1 megaspore remain functional. This functional megaspore, which is also called as embryo sac, it is haploid. It undergoes nourishment by the nucellar cells and it grows in size. Then in this megaspore, the free nuclear division takes place. यानी इसके अंदर free nuclear division होता है. So free nuclear division takes place by the mitosis process. This is very important. So during first mitosis, from 1 haploid nuclei, 2 haploid nuclei are produced. From 2 haploid nuclei in the second mitosis or after second mitosis, 4 haploid nuclei are produced. And after third mitosis, from these 4 nuclei, 8 nuclei are produced. Out of these 8 nuclei, the 3 nuclei are converted into antipodal cells. These 3 nuclei are converted into egg apparatus. Means central is a egg cell, 2 are synergids. This complete structure is called as egg apparatus, and this egg cell is what? Female gamete, and 2 nuclei are present at the center. So these are called as 2 polar nuclei, and this particular structure is called as female gametophyte or embryo sac. After or during fertilization, means after the formation of this structure, during fertilization, both the nuclei fuse together to form a diploid secondary nucleus, and this complete structure, which is having 3 antipodal cells,
towards the micropylar, towards the chalazial end, and one egg cell and two synergids towards the micropylar end, and having a central secondary nucleus. This complete structure is also called as female gametophyte. यहां पर जो फीमेल गमेटोफाइट फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो रहा है, इस फीमेल गमेटोफाइट का दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फीमेल गमेटोफाइट है, ये इस स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग वाला सेल, फर्स्ट सेल कौन है? तो दैट इज व्हाट? मेगास्पोर. मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गमेटोफाइट. ये जो फीमेल गमेटोफाइट प्रोड्यूस हुआ है, ये मेगास्पोर के अंदर ही प्रोड्यूस हुआ है, इसी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इसी के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, माइटोसिस वगैरह हुआ है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म इज एंडोस्पोरिक, यानी स्पोर के अंदर ही हुआ है और एक ही मेगास्पोर से प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए मोनोस्पोरिक. सिंगल मेगास्पोर से कंप्लीट फीमेल गमेटोफाइट प्रोड्यूस हुआ, इसलिए कहते हैं मोनोस्पोरिक. और मेगास्पोर के अंदर ही प्रोड्यूस हुआ है, इट हैज produced, it has developed inside the megaspore, hence it is called as endosporic. Let us see the text. Development of female gametophyte. Just now I have described the complete process. Megaspore mother cell undergoes meiosis to form linear tetrad of haploid cells, that is called megaspore. यानी जो मेगास्पोर मदर सेल है उसका क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है, और लीनियर टेट्रैड जो हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स है, ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल एंड दे आर अरेंज्ड लीनियरली. अपर 3 मेगास्पोर abort and lowest one towards the center of nucellus remains functional. यानी जो 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं, टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, दैट इज मेगास्पोर, यानी 4 मेगास्पोर जो प्रोड्यूस हुए हैं, उसमें से जो अपर 3 है, दे अंडरगो एबॉर्शन और डिस्ट्रक्शन और डिजेनरेशन, एंड जो लोवेस्ट वन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूसेलस, यानी जहां पर वो डेवलप होते रहता है, वहां जो न्यूसेलर स्ट्रक्चर है उसके सेंटर में वो सिंगल मेगास्पोर दैट रिमेन फंक्शनल and it act as the first cell of female gametophyte. यानी वो जो सिंगल मेगास्पोर है वही क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गमेटोफाइट. जनरली 1 मेगास्पोर टुवर्ड्स द सेंटर इज फंक्शनल मेगास्पोर. अभी हमने देखा कि 3 तो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एक जो सेंटर में मेगास्पोर है दैट रिमेन functional, and that is what? Functional megaspore. It is in fact the first cell of female gametophyte. वही अभी हमने स्टडी किया है. It undergoes 3 successive free nuclear mitotic division. यानी जो सिंगल मेगास्पोर बचा हुआ है, वह मेगास्पोर में 3 माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस के वजह से डिवाइड होता है, एंड दीज आर सक्सेसिव, यानी एक के बाद एक ऐसे 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स वहां उस मेगास्पोर का होता है. thus because of that what happens? टोटल 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड. टोटल कितने न्यूक्लियाई तैयार हो रहे हैं? 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, 4 ऑफ विच आर लोकेटेड एट ईच पोल. यानी जो 8 न्यूक्लियाई बन रहे हैं, तो आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई 4 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द कलाइजल एंड प्रेजेंट रहते हैं उस एम्ब्रियो सैक में, एंड रिमेनिंग 4 न्यूक्लियाई दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक और मेगास्पोर. 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट टुवर्ड्स द सेंटर. यानी जो 4 न्यूक्लियाई 2 एंड्स की ओर प्रेजेंट है उस मेगास्पोर में, उस एम्ब्रियो सैक में, तो उसमें से
वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल, यानी दोनों साइड से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है. सो वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल मूव टूवर्ड्स द सेंटर एंड दोज न्यूक्लियाई आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई. थ्री न्यूक्लियाई टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड कॉन्स्टिट्यूट एक apparatus. जस्ट नाउ आई हैव डिस्क्राइब्ड कि जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर जो तीन न्यूक्लियाई है उसमें से एक एग सेल बनता है और दो सिनर्जिड्स बनते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उस स्ट्रक्चर को कहा गया है एग apparatus. एंड इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेंट्रल हैप्लॉइड एग सेल. हैप्लॉइड एग सेल ये हैप्लॉइड मेल गमिट के साथ में फ्यूज होता है और डिप्लॉइड जाइगोट तैयार होता है. हैप्लॉइड एग सेल को ही कहा गया है फीमेल गमिटोफाइड. एंड टू सपोर्टिंग हैप्लॉइड सिनर्जिड सेल्स, यानी एक एग सेल और दो सिनर्जिड सेल्स, ऐसा कंप्लीट तीन सेल्स का बना हुआ एग apparatus वहां पर फॉर्म होता है. सिनर्जिड शोज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस. ये जो दो सिनर्जिड सेल्स है, एग सेल के आजू बाजू वाले दोनों सिनर्जिड सेल्स है, उनमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. एंड दोज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज फिलीफॉर्म apparatus. क्या कहते हैं उन्हें? फिलीफॉर्म apparatus which guide the pollen tube towards the egg. ये फिलीफॉर्म apparatus पोलन ट्यूब को एग की ओर डायरेक्ट करते हैं, दिशा दिखाते हैं. क्योंकि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होता है, उसका जर्मिनेशन होता है और पोलन ट्यूब तैयार होती है, तो वो पोलन ट्यूब स्टिग्मा से पास होते हुए फिर स्टाइल में आती है, स्टाइल से पास होते हुए ओहरी में आती है, और ओहरी से वो पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के जरिए अंदर एंटर होके देन इट विल एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक. अब वो एम्ब्रियो सैक में एंटर होना है तो एक्चुअली एग सेल जो है उसके पास में उसको एंटर होना है, तो उसे गाइड कौन करता है? फिलीफॉर्म apparatus ऑफ द सिनर्जिड सेल. सिनर्जिड सेल का जो फिलीफॉर्म apparatus है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, इट गाइड द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द एग. जिसके वजह से वो जो पोलन ट्यूब में मेल गमिट है, वो मेल गमिट एग सेल के नजदीक रिलीज हो जाए. इट शुड रिलीज नियर द एग सेल. जो शलाजल एंड है या कलाइजल एंड है, वहां पर एंटीपोडल सेल्स तैयार होते हैं. सो एंटीपोडल सेल्स आर ग्रुप ऑफ 3 सेल्स प्रेजेंट एट द कलाइजल एंड. कुछ लेक्चरर्स इसे शलाजल एंड भी कहते हैं. सो विच एवर प्रोनाउंसिएशन यू फाइंड सुटेबल यू कैन प्रोनाउंस इट. द two haploid polar nuclei of large central cell fuse to form diploid secondary nucleus or definitive nucleus. Just now I described it कि जो सेंटर में दो न्यूक्लियाई है वो लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं? एक्चुअली टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई जो है सेंटर में, दे विल फ्यूज विथ ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनेटिव न्यूक्लियस. अब दोनों के दोनों जो न्यूक्लियाई है वो हैप्लॉइड है. दोनों का फ्यूजन होने की वजह से जो न्यू न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होता है वो डिप्लॉइड रहता है. सो जो उस न्यूक्लियस को कहते हैं डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनेटिव न्यूक्लियस. जस्ट प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन होने के थोड़े समय पहले दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं. पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है. सो ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है 7 सेल्स है, यानी 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एग apparatus के सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई एक दूसरे को फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया है. तो जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक है वो एक सेल, ऐसे टोटल 7 सेल्स तैयार हो रहे हैं. अगर पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं भी हुए तो न्यूक्लियाई रहेंगे 8. सो दिस 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एन एम्ब्रियो सैक. उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक. उसी को ही कहते हैं फीमेल गमेटोफाइट. दिस मेथड ऑफ
embryo sac development from a single megaspore is described as monosporic development. एक ही मेगास्पोर पार्टिसिपेट हुआ है यहां पर या उसने पार्टिसिपेशन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फीमेल गमेटोफाइट, इसलिए क्या बोला है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस हुए थे. अगर हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो एक मेगास्पोर मदर सेल्स का मियोसिस होके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस हुए थे, एंड आउट ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स 3 वेयर डीजेनरेटेड. 3 तो डिस्ट्रॉय हो गए, बचा था एक ही. तो एक ही मेगास्पोर का क्या हुआ है डेवलपमेंट हुआ है और उसका क्या बना है फीमेल गमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक तैयार हुआ है. तो सिंगल मेगास्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए बोला है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. इन एंजियोस्पर्म द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट इज एंडोस्पोरस. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बाद है एंडोस्पोरस, क्योंकि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो मेगास्पोर के अंदर ही हो रहा है, विद इन द मेगास्पोर लिखा हुआ है, इसलिए डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म दिस डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट इज एंडोस्पोरस, दैट इज विद इन द मेगास्पोर. Female gametophyte is colorless, endosporic and is concealed in the ovule enclosed by ovary. यानी फीमेल गमेटोफाइट कैसा है कलरलेस है, कोई कलर नहीं उसे. एंडोस्पोरिक है यानी मेगास्पोर के अंदर प्रेजेंट है, उसी के अंदर डेवलप हुआ है, एंड इज कंसील्ड, कंसील्ड यानी हिडन है. कहां पर ओव्यूल के अंदर छुपा हुआ है, कंसील्ड इन द ओव्यूल, एंड ओव्यूल के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है ओवरी वॉल, दैट इज व्हाई इट इज एनक्लोज्ड बाय द ओवरी. सो दिस इज व्हाट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल gametophyte. Thank you very much.